Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the matter and the states of matter. We will give only the brief introduction about these. So let's start today's lecture. So first of all, we want to know what is a matter. Means everything, anything which is present around them, which can occupy space, which has mass, which we can feel, everything that all called as the matter. Means anything which can occupy space and has mass is called the matter. The examples of the matter are the solid, liquid, and the gases. Everything which are present around us in the form of the solid, in the form of the liquid, in the form of the gas, whether the gases are colored or the colorless. If the gases are colorless, then we can feel them. For example, chair, it is a solid thing, that is a matter. Here you can see the glass and the bottle having the water. Everything is the matter. You can see the balloon. We can see the person, hand, everything. We human beings, we all are come in the category of the matter. Now the next definition is what are fluids? Very basic term, that is the fluids, means the substances whose particle can flow independently are called fluids. For example, liquid and gases. You can see in these example, the water particles are not moving in a collective way. They are moving independently. They are moving independently. Each of the water particle you can see here is moving in a independent manner. वो अपने इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर मूव कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल गिलास के अंदर देखो, आपने वाटर देखा. ये जो वाटर है ये पूरा का पूरा जब गिलास के अंदर था तो जो उसकी शेप थी वाटर की, गिलास से बाहर आने के बाद उसकी शेप मेंटेन नहीं रही. गिलास के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स थे गिलास से जब वो बाहर आके देखो गिरे, उसके बाद हर कोई फ्री था, उसने अपनी इंडिपेंडेंट मूवमेंट शो की. तो मीन्स अगर पार्टिकल अपनी इंडिपेंडेंट मोशन शो करते हैं इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, देन दैट मैटर इज कॉल्ड द फ्लूइड. और इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि जो लिक्विड्स हैं, जो गैसेस हैं, यू कैन सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल हियर द गैसेस. आफ्टर द रिएक्शन the gas evolved, the fumes evolved, and these gaseous particles they are moving independently in different direction. They are moving, they are not moving collectively, so they come in the category of the fluids. Means any substance whose particle can flow independently are called as the fluids, and these are liquids and the gases. Solids are not fluid because their particle cannot flow independently. जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो आपके फ्लूइड की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किए जा सकते बिकॉज देयर पार्टिकल कैन नॉट फ्लो इंडिपेंडेंटली. आप फुटबॉल को देखें, इसके अंदर जो गैस है वो तो फिलअप है, लेकिन वॉल जो बाहर का एरिया है जो वो सॉलिड है. और जो जब इसने किक किया पर्सन ने फुटबॉल को, तो पूरी फुटबॉल इकट्ठी मूव करती है. ऐसा नहीं कि किक करने के बाद फुटबॉल का कुछ हिस्सा एक डायरेक्शन में चला गया, दूसरा हिस्सा किसी और डायरेक्शन में चला गया. आपके पास चेयर है घर में, चेयर को उठा के आप वन प्लेस से सेकंड प्लेस के ऊपर ले जाते हैं, आप उसे पुश कर देते हैं, तो पूरी की पूरी चेयर इकट्ठी ही मूव करती है. ऐसा नहीं कि उसका एक पार्ट कहीं चला गया, दूसरा कहीं. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर हमने उसको एकदम फेंक के मारा और वो ब्रेक हो गई. देखो, टूटना एक अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल वे में जब आप उसको मूव करते हैं तो अगर उसके सारे के सारे पार्टिकल इकट्ठे मूव कर जाएं तो आप नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, कि वो फ्लूइड नहीं है. तो फ्लूइड की कैटेगरी में सिर्फ वही सब्सटेंस आते हैं जिनके पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली फ्लो कर सकते हो, और वो सिर्फ कौन होते हैं? दीज आर द लिक्विड एंड द गैसेस. तो सॉलिड्स आर रिजिड. जनरली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डिफाइन फ्लूइड्स, गिव विद एन एग्जांपल, या व्हाई सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड. अगर वो फ्लूइड्स नहीं है तो क्या है? तो सॉलिड रिजिड है. तो व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड? द सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज
their constituent particle have the fixed position and they can only oscillate about their mean position. उनके particles independently flow नहीं करते, लेकिन within the whole substance, जो पूरा substance है, उसके अंदर जो solid के छोटे-छोटे small जो particles हैं, वो अपनी mean position के ऊपर oscillate जरूर करते रहते हैं, लेकिन रहते इकट्ठे ही हैं. वो independently flow नहीं करते, so they are rigid. Now we will see about the differences, main differences between the solid, liquid and the gases, because matter has basically three states: the solid, liquid and the gases. So first of all, we will see the definition of all these. So that must be the first point of difference. अगर हम कभी भी किन्हीं भी चीजों के बीच डिफरेंस देखते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस हमेशा क्या होता है, वो उनकी डेफिनेशन. तो व्हाट आर सॉलिड्स? Solids are those substances which have definite shape and definite volume. आप किसी भी solid को ले, आप उसको एक जगह से चेयर ले ली आपने, उसकी डेफिनेट शेप है, वो चेयर चेयर ही रहेगी. आप एक जगह से दूसरी जगह आप उसको उठा के रख दें, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, डेफिनेट होगा. तो द सब्सटेंस विच हैव द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड एज द सॉलिड्स. What are liquids? Liquids are those substances, that state of matter which have definite volume but no definite shape. For example, आपने जो मिल्क मैन है उससे आपने मिल्क लिया, 5 लीटर आपने मिल्क ले लिया, तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहा, 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर. लेकिन जब आप उसको एक बोतल में डालेंगे, तो जो लिक्विड है इट विल एक्वायर द शेप ऑफ द बोतल. आप किसी और कंटेनर में डालेंगे, किसी मग में डालेंगे, तो जो लिक्विड है इट विल एक्वायर द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर मग. आप उसको किसी बीकर में डालेंगे, बड़े बीकर में, बड़े जार में डालेंगे, सो इट विल एक्वायर द शेप ऑफ दैट जार. मींस जो लिक्विड होते हैं दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर. आप जिस कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे वो उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेता है. मींस लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती. नेक्स्ट आर गैसेस. दे हैव नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम. आपने जो गैसेस हैं आपकी, फॉर एग्जांपल, आप जब एयर, आपके गाड़ी के जो टायर होते हैं, जब आप उसमें एयर फिलअप करवाने के लिए जाते हैं, तो वो जो गैस होती है, आपने देखा होगा काफी बड़ा कंटेनर होता है जिसके अंदर वो गैस को स्टोर करके रखते हैं. तो दैट इज द वॉल्यूम. वो उसका वॉल्यूम है कि उसके अंदर कितनी गैस आ गई. उसके बाद उसकी शेप उस कंटेनर जैसी है जिसके अंदर उन्होंने गैस को फिलअप करके रख रखा है. फिर हम टायर के अंदर गैस डलवाते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा आपके टायर के अंदर वो डाल दिया कि इसके अंदर टायर का प्रेशर 30 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, ऑन दैट बेसिस कि उन्होंने गैस आपके टायर के अंदर डाल दी. उसके बाद जो गैस है उसकी शेप कैसी हो गई, वो टायर जैसी हो गई, वो सर्कुलर हो गई उसकी शेप. वो सर्कुलर फॉर्म में गैसेस पार्टिकल मूव कर रहे हैं. और जो उसका तो व्हाट इट मींस, हम क्या कह सकते हैं, गैसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव नो डेफिनेट शेप. उनकी शेप चेंज हो गई. नो डेफिनेट वॉल्यूम. अगर आपने टायर में आपके पंचर हो जाता है, तो उसके बाद जो गैस निकलेगी, क्या वो उसी सर्कुलर फॉर्म में रहेगी? नो. वो क्या होगी, जो गैसेस हैं वो आपकी स्प्रेड हो जाएंगी इन द होल इन्वायरमेंट. पूरे, पता नहीं जितना भी लंबा चौड़ा हमारा इन्वायरमेंट है, सभी पता नहीं वो कहां तक गैस के पार्टिकल चले जाएंगे. मींस नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम. तो गैसेस जो होती हैं दे हैव नो डेफिनेट शेप, दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम. जो गैसेस पार्टिकल भी जिस भी कंटेनर में आप उसको डालेंगे, उसी की शेप को वो एक्वायर कर लेती है. जिस कंटेनर में फिलअप करेंगे उसी का वॉल्यूम बन जाता है. द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. वॉल्यूम ऑफ द क्लोज्ड कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ये ध्यान रखें. कभी आप ये कहें सर आपने बीकर के अंदर गैस डाली, वो तो उड़ गई, बाहर चली गई, वो तो ओपन कंटेनर है. इफ यू हैव ए क्लोज्ड कंटेनर, आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, जैसा जैसी भी शेप का है, चाहे वो मग है, बीकर है, राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर से टाइटली पैक्ड आपकी, तो जो गैस आप डालेंगे तो गैस क्या करेगी, इट विल एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, इट विल एक्वायर द शेप ऑफ द closely tight container. It will, their volume will be the volume of the container. So means solid are those substances which have definite shape and definite volume. Liquids are those substances which have definite volume but no definite shape, while the gases are those state of matter which have no definite shape, no definite volume. Now the next point of difference, जो सॉलिड होते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग. जितने भी सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन होती है बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि आपके
पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, while in case of the gases the force of attraction between the particle is very very negligible, क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच गैप बहुत ज्यादा होती है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए आपके जो सॉलिड होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, और गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, वेरी वेरी स्मॉल। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड में दैट इज मॉडरेट, दैट इज इन बिटवीन द सॉलिड एंड द गैसेस। नेक्स्ट, दे हैव द वेरी हाई डेंसिटी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो फार्मूला होता है डेंसिटी का, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे अभी हमने बताया जो गैसेस जो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल देखो ये हमने शो किया यहाँ पे, दीज आर द डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल्स। देखो इस टाइप से हमने दिखाया, दे आर क्लोजली पैक्ड। वाइल इन केस ऑफ, मान लीजिए हमने टोटल 3 to 5 4 9 और ये 10, देखो हमने 10 पार्टिकल्स ये शो किए हैं। वाइल इन केस ऑफ द gaseous state, these 10 particles are present far away, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And in case of the liquid state, these particles are present in that way, 6, 7, 8, 9 and 10. We are just comparing, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड स्टेट में वो बोलो क्या है, ज्यादा, देखो एक दूसरे के हमने नजदीक शो कर दी। लिक्विड स्टेट में आप देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। गैसेस स्टेट में देखें गैसेस पार्टिकल थोड़े और दूर हो गए, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम हो गई। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने सेम लिए, वही 10 पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल्स, वही सेम 10 पार्टिकल्स है, लेकिन उनकी स्टेट अलग अलग है। सेम सब्सटेंस लिया, सेम सब्सटेंस, ध्यान दे, सेम सब्सटेंस लिया हमने। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स को हम शो करते हैं H2O को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए 10 पार्टिकल है उसी सब्सटेंस के, सॉलिड स्टेट में अगर वो प्रेजेंट है तो उनकी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, लिक्विड में, गैसियस में, तो मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमने डिफरेंस शो किया। तो सेम पार्टिकल्स हैं तो हुआ क्या, जो ये फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास तो क्या रहा, मास तो आपका सेम रहा इन ऑल द थ्री केसेस, क्योंकि हमने पार्टिकल्स 10 ही लिए हैं, सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स ले लिए, तो मास तो सेम रह गया। लेकिन जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है दैट इज डिफरेंट, इन्होंने कम स्पेस ऑक्युपाई किया। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी सब्सटेंस कितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इन 10 पार्टिकल ने सॉलिड स्टेट की फॉर्म में थे तो उन्होंने वॉल्यूम देखो कम ऑक्युपाई किया। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे वॉल्यूम इज लेस इन केस ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम लेस तो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डेंसिटी बोलो क्या होगी, ये मोर होगी। ऐसे ही आप ध्यान से देखें लास्ट गैसीय स्टेट के अंदर, तो इन्होंने 10 पार्टिकल ने वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई कर लिया, देखो इतने ज्यादा स्पेस के अंदर वही 10 पार्टिकल हैं, तो मीन्स वॉल्यूम इज मोर। तो वॉल्यूम इज मोर तो डेंसिटी विल बी लेस, डेंसिटी विल बी लेस। तो अभी हमने क्या लिखा था, इन केस ऑफ द सॉलिड स्टेट दे हैव द हाई डेंसिटी, सो दैट इज द रीजन कि द सेम पार्टिकल्स of the same substance will occupy more volume in case of the gaseous state and the less volume in case of the solid state। सेम सब्सटेंस के सेम पार्टिकल, सेम संख्या में पार्टिकल लेते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो वो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, इसलिए उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर वही सेम पार्टिकल्स को हम गैसीय स्टेट में पहुंचा दे बाय हीटिंग करके, तो दे विल ऑक्युपाई मोर वॉल्यूम, वो ज्यादा जगह में फैल जाएंगे, इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं दे सॉलिड्स हैव द हायर डेंसिटी while the gases have the less density। और जो डेंसिटी होगी लिक्विड की वो क्या होगी, दैट इज अ मॉडरेट, the density will be in between the solid and the gaseous state। तो ये आपने देखा डिफरेंट पॉइंट आपके किस चीज के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस की डेंसिटीज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्पेस के बारे में। जैसे अभी हमने आपको पहले ही बता दिया, दे हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे आप देख भी पा रहे हैं अभी जो सॉलिड स्टेट के जो हमने पार्टिकल्स 10 पार्टिकल्स जैसे हमने लिए, तो उनके बीच में आपको दिखाई देगा, बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड, दे हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। व्हाइल इन केस ऑफ द गैसेस दे हैव वेरी लार्ज स्पेस, देखो पार्टिकल्स के बीच में ये बहुत सारा देखो लार्ज वैकेंट स्पेसेस हैं, देखो जो हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं, दीज आर दी वैकेंट स्पेसेस।
while in case of the liquid they have more vacant spaces in between the particle than the solid but less than that of the gaseous state. तो ये हमने बताया about the spaces. तो means these all things, all points are correlated with each other. ये सारे पॉइंट आपस में correlated है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक होंगे. सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो एक दूसरे से क्लोजली पैक होंगे. क्लोजली पैक होंगे तो वैकेंट स्पेस कम होंगे. वैकेंट स्पेस कम है, क्लोजली पैक्ड है, तो ये पार्टिकल्स लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. लेस वॉल्यूम तो डेंसिटी क्या हो जाएगी इनकी, ज्यादा हो जाती है. क्लियर हो गया यहां तक आपको? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दे आर लेस कंप्रेसिबल. अब ध्यान से देखिए हमने लिख रखा है दे आर लेस कंप्रेसिबल. तो ये जब स्पेस ही नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, जब पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड स्टेट में, देखो आपके डायग्राम भी है, हमने लिख भी दिया दे आर लेस कंप्रेसिबल. तो पार्टिकल्स के बीच में जब गैप ही नहीं तो क्या आप उनको दबाएंगे, बाहर से आप प्रेस करेंगे तो क्या पार्टिकल और ज्यादा नजदीक आ सकते हैं? नहीं आ सकते. कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कंप्रेसिबल कब होती है, जब आप उसके ऊपर बाहर से प्रेशर लगाएं, प्रेशर लगाने के बाद उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है वो ज्यादा से वॉल्यूम कम हो जाए. वो ज्यादा से कम कब हो सकता है, तो जो वो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के अंदर जितने भी जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में गैप का होना जरूरी है. पार्टिकल्स के बीच गैप होगा तभी तो आप उनको और नजदीक ला सकते हैं बाय अप्लाइंग सम प्रेशर. अगर आप बाय अप्लाइंग सम प्रेशर अगर आप उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर पाए तो आप कहेंगे कि दी दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल है. तो सॉलिड के केस में तो आपने देखा पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं है, गैप नहीं है, नेग्लिजिबल गैप है, तो क्या आप उनको और कंप्रेस कर सकते हैं, उन पार्टिकल को और नजदीक ला सकते हैं? नो. सो दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल. और गैसेस के बीच में अगर आप देखेंगे सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल. दे आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज कोई आपसे रीजन भी पूछे व्हाई, ऐसा क्यों, तो आप इसका आंसर भी यही देंगे व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल. द गैसेस आर कंप्रेसिबल बिकॉज देयर आर वेरी लार्ज वैकेंट स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स. सो बाय अप्लाइंग प्रेशर आपके जो पार्टिकल्स हैं दे कैन कम क्लोजर टू ईच अदर, सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल. और जो कंप्रेसिबिलिटी है लिक्विड की, दैट इज इन बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड. इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड की, वो सॉलिड और लिक्विड के इन बिटवीन होती है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब एनर्जी की बात करते हैं. आपके जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उनके पार्टिकल्स दे आर लेस फ्री टू मूव. उनके पार्टिकल्स मूव कम करेंगे, कम मूव कर पा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, दे हैव द लीस्ट एनर्जी. उनके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी कम है, कम मूव कर पाए, कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होती तो ज्यादा मूव कर पाते. और ज्यादा क्यों मूव नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने बताया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई. आपको बताया गया ना डेफिनेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में. मींस अट्रैक्शन मींस जब किन्हीं भी दो चीजों के, देखो दो चीजें दूर है, जब भी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस समथिंग रिली, एनर्जी विल बी रिलीज आउट. एनर्जी बाहर निकल गई, खुद की एनर्जी कम रह गई, तो खुद की एनर्जी कम है. तो जिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उनकी एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दौरान बाहर निकल गई और खुद की एनर्जी हो गई कम. और नाउ दे आर लेस फ्री टू मूव, अब वो मूव भी कम कर पाएंगे. तो दैट इज द रीजन. और वैकेंट स्पेसेस भी कम है. मींस दीज आर द डिफरेंट फैक्टर ऑन दैट बेसिस वी कैन सी कि द सॉलिड पार्टिकल्स हैव द लीस्ट एनर्जी, इनकी एनर्जी सबसे कम होती है. In case of the gases, they have the maximum energy. There is a large gap in between the particles. The force of attraction is less, so they are more energetic. They are more free to move. So they have the maximum energy among these three states. Solid, liquid और gases में जो maximum energy होती है वो सबसे ज्यादा energy किसकी होती है, gaseous state की. आपने देखा ना, आपके पास घर में वाटर है किसी कंटेनर के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर, आपने उसको हीट किया नीचे से, जो आपका बॉइल्ड वाटर है जो गर्म है, आप उसके अंदर आपकी फिंगर टच करें, आपकी जो फिंगर को जो हीटिंग मिलेगी, जो बर्न होगी, जो आपको नुकसान पहुंचेगा आपकी फिंगर को, वो कम पहुंचेगा एज कंपेयर टू कि आप उसको हीट करें और हीट करने के बाद आपके जो वेपर्स बाहर निकल रहे हैं स्टीम की फॉर्म में, अपने हाथ को स्टीम के पास लेके जाएं ऊपर, बिल्कुल और नजदीक लेके जाएं स्टीम के पास, तो वो जो स्टीम है वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी. सिमिलरली बेटा आपने देखा होगा आपके पास घर में गर्म चपाती है, जब वो बनती है, जो फूल जाती है, आपने गर्म चपाती को अपने हाथ से उठा लिया, आपको यानी आपके हाथ को कम हीट फीलिंग हो रही है. लेकिन अगर जो फूली हुई चपाती है आपने उसको कहीं से पंचर कर दिया, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ भी होगा, तो जैसे ही उसमें से वो हॉट एयर बाहर निकलती है, आपका हाथ वहां पे था, आप एकदम ऐसे चपाती को, यानी आपके हाथ से चपाती छूट जाती है, क्योंकि दैट
these are the vapors which have more energy, उनके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है. So these are very basic example which we can see, which we can feel in our day to day life. आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर जो बातें हम बता रहे हैं किसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, किस, ये आप डे टू डे लाइफ में बेटा आप ऑब्जर्व करते रहते हैं. तो मीन्स आपने क्या देखा, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं दे हैव द लीस्ट एनर्जी, while the gaseous particle they have the maximum energy. और जो एनर्जी होगी लिक्विड पार्टिकल्स की, दैट इज इन बिटवीन द सॉलिड एंड द गैसीय स्टेट. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में. बट एक चीज और हम आपको साथ के साथ यहाँ पे बता दें, अगर कोई आपसे ये पूछे why that particular substance is solid, why that particular substance is liquid, why that particular substance is gas, आप किसी सब्सटेंस को सॉलिड क्यों कहते हैं. आपने देखा होगा जो फॉर एग्जांपल H2O दैट एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस. तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द वाटर, आप कहते हैं इट इज इन लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट के अंदर है. ऐसा क्यों? देखो, देयर इज द टेम्परेचर दैट कॉल्ड एज द रूम टेम्परेचर. जनरली 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज एज्यूम टू बी एज द रूम टेम्परेचर. 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर एज्यूम करके चलते हैं. तो जो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपनी नेचर के अंदर आप सारी चीजें रखी हुई देखें, आप देखें अपने चारों तरफ जो भी चीज आपको नेचर के अंदर दिख रही है, तो जो भी चीज आपको एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आपके नेचर के अंदर दिखे और वो जिस स्टेट में दिखे वही उसकी स्टेट कहलाती है. आप जानते हैं कि एट द 25 डिग्री सेल्सियस द H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, सो वाटर इज अ लिक्विड. लेकिन जब आप माउंटेन्स पे जाएं, पहाड़ियों पे जाएं, सर्दियों में जाएं, वहां पे आप उसको आइस की फॉर्म में भी देखते हैं, सॉलिड स्टेट में भी देखते हैं. घर में बॉयल कर दें तो गैसीय स्टेट के अंदर भी वाटर को आप देख सकते हैं, वेपर स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं. लेकिन जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द स्टेट ऑफ द वाटर, तो आप कहेंगे इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. यू विल नेवर से इट देयर स्टेट इज सॉलिड, देयर स्टेट इज गैसियस. नो, जनरली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर, योर आंसर विल बी, your answer must be, बोलो क्या, the state of the water is liquid, because at 25 degree Celsius it exists in the liquid state. So that will be their reasoning, वो उसकी reasoning होगी. अब हम बात करते हैं इस चीज के बाद कि हम किसी भी सब्सटेंस के बारे में जो आपसे रीजनिंग पूछी जाए कि why it is solid, why it is liquid, why it is gas, तो simply say that 25 degree Celsius it exists in the liquid state, it exists in the solid state, it exists in the gaseous state. So that is the simple reasoning of that particular question. Now the next point about the solid, liquid, gas, that is the melting and the boiling point. आपको क्या देखना है कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर की अभी हम बात कर रहे थे, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने H2O को देखा, दैट इज देयर लिक्विड, वो आपको लिक्विड स्टेट में होता है. तो फिर जो वाटर था वो सॉलिड स्टेट में कब था, वो सॉलिड स्टेट में कब था, जब आपने उसको फ्रिज के अंदर रख दिया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, तो वो कब क्या हो गया उस टाइम पे, वो आपका सॉलिड स्टेट में आ गया. तो मीन्स वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप सभी जानते हैं ना, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट टुगेदर. एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है. वो सॉलिड स्टेट भी होती है, लिक्विड स्टेट में भी होता है, देयर इज अ इक्विलिब्रियम. सो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, आप उसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है. तो वो टेम्परेचर कहाँ है, वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया, तो वो रूम टेम्परेचर से नीचे है. तो आपने क्या बताया मैंने आपको, सॉलिड जो स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, उन जैसे फॉर एग्जांपल चेयर है, वो कब पिघलेगी, कब मेल्ट होगी, जब आप उसको हीट करेंगे. कब वो बॉयल होगी, जब आप उसको और ज्यादा हीट करेंगे. तो मीन्स किसी भी सॉलिड स्टेट का, चाहे वो गोल्ड हो, कॉपर हो, आयरन हो, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कब कहां पे होगा, सॉलिड स्टेट का अबो द रूम टेम्परेचर. मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले किसी टेम्परेचर के ऊपर ही वो मेल्ट होगा, उसे और किसी ऊपर वाले टेम्परेचर के ऊपर ही वो जाके बॉयल होगा. तो इसीलिए हमने ये पॉइंट लिखा सॉलिड स्टेट में कि देयर मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज अबो द रूम टेम्परेचर. अब नेक्स्ट बात हम करें लिक्विड स्टेट की, जैसे अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे वाटर के बारे में, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्ट कब हुआ होगा, ये कब पिघला होगा. मैंने बताया ना 0 डिग्री सेल्सियस से जस्ट थोड़ा सा आपने टेम्परेचर ऊपर किया तो वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया. तो मीन्स कब मेल्ट हुआ,
पहले तो सॉलिड स्टेट में था 0 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे तो सॉलिड स्टेट में था। फिर वो मेल्ट कब हुआ? फॉर एग्जांपल 0.1 डिग्री सेल्सियस पे या 0.00001 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया। तो मीन्स वो टेम्परेचर कहाँ था? दैट इज बिलो द रूम टेम्परेचर, दैट इज बिलो द रूम टेम्परेचर से नीचे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। वो बॉयल कब हुआ? बॉयल कब होगा? फॉर एग्जांपल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है, हम जानते हैं। तो वो क्या है? दैट इज अबो द 25 डिग्री सेल्सियस, अबो द रूम टेम्परेचर। दो जो लिक्विड होते हैं देयर मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी चीज हमें लिक्विड स्टेट में दिख रही है हमारे सामने किसी कंटेनर के अंदर रखी हुई एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज अ रूम टेम्परेचर। उस 25 डिग्री सेल्सियस उस रूम टेम्परेचर के ऊपर वो हमें लिक्विड स्टेट में दिख रही है। तो वो मेल्ट कब हुई थी? वो पहले ही मेल्ट हो चुकी है ना। तो दैट मीन्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज बिलो द रूम टेम्परेचर। और वो बॉयल कब होगी? वो अभी हम हीट करेंगे तब जाके बॉयल होगी। मीन्स अबो द 25 डिग्री सेल्सियस बॉयल होगा वो चीज। तो मीन्स देयर बॉइलिंग पॉइंट इज अबो द रूम टेम्परेचर, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। The liquid's melting point is below the room temperature while their boiling point is above the room temperature. Now about the gases. हमारे पास नेचर में सारी चीजें गैसेस फॉर्म के अंदर हैं। जो हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, दैट ऑल प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट। तो जो गैसेस हैं वो तो अब गैसेस स्टेट में है ना। तो वो लिक्विड स्टेट में कब थी? 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो गैसेस स्टेट में है। तो वो लिक्विड स्टेट में कब थी? वो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही कभी आपकी लिक्विड स्टेट में रही होंगी, और सॉलिड स्टेट में और भी किसी लोअर टेम्परेचर पे रही होंगी। मींस द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, बोथ दीज पॉइंट्स इज बिलो द रूम टेम्परेचर। गैसेस जो होती है, गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज बिलो द रूम टेम्परेचर। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। तो बेटा आप इन सारी चीजों को बेसिक तरीके से अच्छे से आप इनको याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अबाउट द मैटर। थैंक यू।